Hello students, welcome to our online Pathshala. So let's start. Our new question is this one. Question is the mass of given compound C6H12O6 is 540 gram. Then calculate. The first part is mole of compound. Second part is number of molecule. Third part is mole of an atom. Fourth part is total mole of an atom. Fifth part is number of an atom. Sixth part is total number of an atoms. This is the question. Okay, so let's start how to calculate all six part in question. The first condition is mole of compound. So mole of compound is number of moles. It means हमें कैलकुलेट करना है बेटा मोल उस कंपाउंड के. सो मोल इक्वल्स टू गिवन मास इज 540 डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड मोलर मास इज C6H12. 6 carbon atom into atomic mass of carbon atom is 12 plus number of hydrogen atom is 12 and atomic mass of hydrogen is 1 plus number of oxygen atom is 6 into atomic mass of oxygen is 16 is equals to 180 gram per mole. Okay, so divided by 180, so answer is 3 mole. The first part is 3 mole, and we will move in next part number 2, number of molecule. So number of molecule is equals to 3 Na molecules. इससे पहले पार्ट में बेटा मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड के मोल होंगे उसके पीछे आप Na लगा दोगे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताएगा. जब भी हम नंबर की बात करेंगे वो Na के टर्म्स में आएगा, और यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो वो मोल ऑफ कंपाउंड के पीछे डायरेक्टली हमें Na पुट कर देना है तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर 3. इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3. नंबर ऑफ मोल ऑफ एन एटम के हमें मोल निकालने हैं. सो मोल ऑफ कार्बन एटम is equals to atomicity of carbon is 6 and mole of compound is 3, so answer is 18 mole. The first part answer is 18 mole. Next, mole of hydrogen atom. So atomicity of hydrogen is 12 and mole of compound is 3, so answer is 36 mole. Part number next condition,
mole of oxygen atom is equals to, atomicity is 6 and mole of compound is 3, is equals to 18 mole. And part number 4, the fourth part is total mole of an atom. Total mole of an atom is equals to 18 plus 36 plus 18, so is equals to 72 mole. This is the answer of fourth part. And part number fifth, the fifth part is number of an atom. So number of carbon atom, and the most important term is, if we know that we will discuss about carbon atom, so we will move in mole of carbon atom. अगर बेटा हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करने हैं तो सीधे सीधे हमें मोल ऑफ कार्बन एटम को मूव करना होगा, एंड मोल ऑफ कार्बन एटम इज 18. सो आंसर इज 18 Na atoms. 18 Na atoms. Next part, number of hydrogen atom is equals to 36 mole. It means 36 Na atoms. Next part is number of oxygen atom is equals to 18 Na atoms, because we know that the mole of oxygen atom is 18 mole. Okay, the answer is 18 Na atoms. Next part is 6, total number of an atom. So total number of an atom is equals to total number of an atom is equals to 18 Na plus 36 Na plus 18 Na. So answer will be 72 Na atoms. This is the final answer. And most important part is कि how to calculate number of atoms and total number of atoms and mole of an atom. Okay, फर्स्ट जो यहाँ पर हमें बेसिकली ध्यान देना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर मैं ये फोर्थ पार्ट से सिक्स पार्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, डायरेक्टली जो मोल लिखे हैं टोटल मोल्स निकाल दिए उसके पीछे Na लगा दूं तब भी मेरा आंसर आ जाएगा. इन सिंपल वर्ड कि हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है, सबसे बेसिक पॉइंट पे ये जाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे. Okay, so this one is the most important part. So we know that कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें समझना है एंड क्वेश्चन को हमें किस तरीके से लेके चलना है. एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स में लेके चलते हैं. क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूं, थोड़ा हम यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करेंगे. पहले मैं आपको पूरा उसका थीम समझा दूं. थीम यह है कि अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से यहां पर आपको एक्सप्लेन करूं, अगर हमें क्वेश्चन में टोटल एटम्स दे दिए हों, टोटल एटम्स जो हमें गिवन हो क्वेश्चन में, और हमें बोला है कि कैलकुलेट गिवन मास, हमें गिवन मास निकालना है. इट मींस जो ये मास दिया था हमें ये निकालना है, एक टाइप से सिंपल बोले तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. अगर हमें एटम्स दिए हैं तो सबसे पहले हमें एटम से मोल निकालना है और मोल के बाद गिवन मास निकालना है. दिस इज द पाथ. ये हमें पूरा अच्छे से ध्यान रखना होगा. तो यहीं पर हम एक क्वेश्चन के लिए सोचते हैं और उस बेसिक क्वेश्चन को करते हैं. ओके, क्वेश्चन इस तरीके से है,
the total number of an atoms of a given compound CO2 is 24 Na atoms। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट गिवन मास ऑफ ए कंपाउंड। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें ये कंप्लीट दिया है तो मैं यहीं से आपका स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप किस तरीके से करना है आप लोग देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन आपको मैंने मेंशन कर दिया है, आप 1 मिनट के टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप स्टार्ट करिए, आप थोड़ा सोचिए क्वेश्चन के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चन किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम ये मूव करेंगे कि जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिए हों या किसी इंडिविजुअल के लिए भी नंबर ऑफ एटम्स दिए हों, तो हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है 1 मोल से। सो लेट्स स्टार्ट। 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड CO2 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी एटम्स। सो कैलकुलेट करते हैं यहीं से हम फर्स्ट। मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एटम के मोल, एटॉमिसिटी इंटू मोल ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू 1 मोल। अनदर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम is equals to atomicity into mole of compound equals to 2 mole। एंड यहीं से हम एक स्टेप और कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो मोल कितने हैं, 1 मोल। सो Na एटम्स हो जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल्स टू Na, एंड एटम की बात कर रहे हैं तो Na एटम्स। एंड सेम वे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स is equals to 2 Na atoms। एंड यहीं से अगर मैं मेंशन करूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स is equals to 3 Na atoms। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 1 मोल। 1 मोल में 3 Na एटम्स मुझे मिल चुके हैं, तो मैं मेंशन कर सकता हूं 1 मोल ऑफ ए CO2 compound contain is equals to how many atoms, 3 Na atoms। okay, so 1 atom contain how many moles, 1/3 Na moles। and in given क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमें दिया हुआ है 24 Na, तो मुझे 24 Na में मोल निकालना है। तो 24 Na में तो मैं मेंशन कर सकता हूं 24 Na एटम्स is equals to 1/3 Na into 24 Na। so Na से Na कैंसिल आउट, 3 से ये कैंसिल आउट 8 टाइम्स। सो मोल इज इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा 8। एंड we know that mole equals to 8 and the formula is number of moles equals to given mass by molar mass। this is the short form of a mole formula। okay, so यहीं से स्टार्ट करते हैं। 8 is equals to गिवन मास को x मान लेते हैं,
क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। एंड मोलर मास ऑफ CO2, इससे प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, मोलर मास ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, 12 into 1 plus 16 into 2 is equals to 44, so divided by 44. ओके, सो यहां से फाइनल आंसर होगा x equals to 8 into 44. So it will be calculated 8 4 जा 32 2 and 8 4 जा 32 और 3 36. So answer is 8 into 44. मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 352 ग्राम. This is the final answer. This is the final answer. I hope कि बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. कहीं पर भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें जरूर मेंशन करिए, हम आपका क्वेरी सॉर्ट आउट भी करेंगे. ये अभी बेसिक था, अभी उसमें मुझे वन टाइप ऑफ क्वेश्चन और डिस्कस करना है, उसके बाद हम जाएंगे आइंस में. ओके, थैंक यू.